Hi guys, hello everyone. Hi guys, this is Chef Weber Bhargav. Uh, Today I'm doing live from Indian Culinary Forum India. I'm being a part of it for so many years. And hi Chef Vinod. Uh, Thank you so much for this opportunity for ICF Forum that allow me to do some kind of cooking for this culinary forum जहाँ पे बहुत सारे शेफ्स हैं हमारे साथ और first of all to all my audience I just want to say that today is a very great day. It's a Mother's Day, and so happy Mother's Day to all my viewers. And I just want to wish everyone for this. And we all know that mothers are always a great cook, and today it's my honor and my pleasure that I'm cooking one of the favorite dishes. Hi Sangeeta ji, how are you? तो आज की जो डिश है इट्स अ वेरी वेरी सिंपल डिश बट आई ट्राई टू डू इट इन ए रेस्टोरेंट वे. In one of my restaurants I have done this dish, and I thought कि आज आप लोगों के साथ इसी तरीके की एक डिश जो आप घर में कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव होके बट बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ यू कैन कुक सच सिंपल डिशेस. और क्योंकि मेरा घर वेजिटेरियन है, सो आई एम गोना कुक समथिंग वेजिटेरियन विच इज़ आई ऑलवेज लव कुकिंग फॉर वेजिटेरियंस, and my love for mushrooms never ends. So आज की जो डिश भी है वो हमारी मशरूम से रिलेटेड है. Why mushrooms? Because you know a lot of people like soya chops, cottage cheese and other options, but mushroom is something which is very earthy. It's close to my heart because when you eat that you have so many flavors. The kind of flavors comes out, it is incredible. And there's so much of mushrooms which we are still exploring, and guche is one of them, truffles are one of them. So I think they are the kings for vegetarians. So I think, and being vegetarian, yes chef, it's I think most of the people in our countries are vegetarian, I think. And I don't know the percentage, but I suppose at least 40% should be vegetarian in our country, or maybe I'm wrong. It should be 60-40, 60 vegetarian and 40 non-vegetarian. So let's start this recipe without wasting too much time. So today's recipe जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये it's on my take. There is no such typical recipe अगर कोई बोले क्या है, but this is my take on a canapé from a Thai recipe. And what I'm gonna do is हम लोग एक मशरूम करी का एक मिक्सचर बनाएंगे, and that will go as a topping for our Vietnamese rice paper. So it's a mix of two to three things, and then I tried, but the combination is phenomenal. I will show you one or two combinations because it goes on like we're gonna use sabudane ka papad also. I will show you. So there are different ways, so we're gonna talk about that. Hi Nitin, how are you? I hope you all are ready, and let me take you towards the ingredients first, what all ingredients we have, and then we will start our cooking. चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारे सारे ingredients, and let's see what all we have today. Okay, so हमारा सबसे first main ingredient. So hello everyone, Sandeep Bansal, Chef Sandeep Bansal has joined us. Okay, so first come first, our main ingredient. You can see this rice paper sheets I have from Vietnam in my last trip. You can buy from a local market, it's available.
And so today this is our main ingredient, the rice paper sheets, which is going to be our star with our curry. Then I have this powder, coconut milk powder. It's in a packet. I'm just gonna open and dissolve. Other basic ingredients which we are gonna use are some lemon zest. I have some diced onion, roughly chopped, coriander roots, some green chili. You can see some sabundana pepper. I have yellow curry paste. Today I'm gonna make it with a yellow curry paste. अगर आप चाहते हैं तो आप इसको green curry के साथ भी बना सकते हैं, red curry के साथ भी बना सकते हैं. This recipe goes with any curry. It's and this vegetarian curry, the yellow curry I'm using today is a vegetarian version. Yes, you can see this beautiful star dish. हमारा mushrooms beautifully. I just bought them in the morning. I have some light soya sauce. I have ginger, some lemon juice. I have some little sweet chili sauce which we're going to use, some fresh coriander, spring onion white, a little bit of sugar, and along with that I have kept oil here, and so this is we're going to use later for frying. So chaliye, these are, as I have shown you, these are our ingredients. I hope everybody has seen this. This is again I'm just showcasing you once again. चलिए अब चल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. हम चलते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप की तरफ, और सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी करी, जो कि बहुत ही बेसिक रेसिपी है. ये हमारी जो रेसिपी है, देखिए क्वारंटाइन के टाइम की है. अभी हम क्वारंटाइन के अंदर हैं और हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज that I'm gonna use I don't have galangal, lemongrass, or which are the main ingredients, kaffir lime. But what I have is I have this, as I showed to you, I have this paste already, so it has all those flavors. So we're gonna make a very basic simple recipe of curry, for which I'm going to lighten up my gas here with a non-stick pan. Okay, and then what I have done is, so थाई करी बनाने का आप अभी सारे शेफ्स को हमें मालूम है कैसे हमें चाहिए होता है, the basic what we need. What I'm going to do is, जनरली देखिए अगर आप रेस्टोरेंट में डालते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिज़ोल्व कर रहा हूँ. जो मेरी करी है इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला रहा हूँ, क्योंकि इसको ऐसा करने से ये पकने में थोड़ा आसान हो जाता है. इट हेल्प्स इन कुकिंग. और यहाँ हम थोड़ा सा बाद में हमारी जब प्रिपरेशन होगी तो हमें बटर भी चाहिए होगा. देखिए चलिए ये हो गई है. देखिए ये देखिए डिज़ोल्व हो गई है इस तरीके से. तो बहुत ही होम रेसिपी मैं बताने जा रहा हूँ, बट ये जब आप अगर आप चाहें तो ये बहुत ही रेस्टोरेंट डिश है, जहाँ पे हम काफ़ी लाइम, लेमन ग्रास, सब कुछ इसके अंदर डालते हैं जैसे एक थाई करी बनती है. बट आई एम गोना यूज़ बेसिक इंग्रेडिएंट्स. फर्स्ट कम फर्स्ट. चलिए डाल देते हैं हमारे पैन में. सबसे पहले डाल देते हैं पैन में थोड़ा सा ऑयल. ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, करीब 1 टेबलस्पून. थोड़ा सा ऑयल लिया हमने यहाँ पे. यहाँ डालेंगे सबसे पहले हम थोड़ा सा हमारा गार्लिक. ये करी में एक फ्रेशनेस देगा. थोड़ा सा हम इसको हमारे जब हम मशरूम बनाएंगे उसके अंदर भी यूज़ करेंगे. तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा 1 टीस्पून का हमारा जिंजर, और इसको हम अच्छी तरीके से हल्का सा सौटे कर लेते हैं. बहुत ही बेसिक करी बना रहे हैं, लेकिन घर के होम स्टाइल के अंदर से बना रहे हैं, जो भी हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं. आई एम श्योर आप लोग भी आज कुछ ना कुछ स्पेशल अपने मॉम्स के लिए बना रहे होंगे,
would be very happy if you can tell us what all you guys are making. ये जो रेसिपी है देखिए बहुत ही सिंपल है. इसमें हमने मशरूम, इसके 3-4 स्टेप्स हैं. जैसे फर्स्ट स्टेप में हमें करी बनानी है, और दूसरे स्टेप में हमें मशरूम्स बनाने हैं, उसको सौते करना है, और थर्ड स्टेप में हमें राइस क्रैकर को डील करना है. सो 3 स्टेप्स हैं. ये देखिए हमारा सौते हो चुका है थोड़ा सा. अगर आपके पास लेमन ग्रास है, काफी लाइम है और गालंगल है तो उसको आप चॉप करके यहाँ पे डाल सकते हैं इस वक्त, और एक अच्छा अरोमा देगा. What I'm going to do is, जैसे मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास ये थोड़ा सा लेमन जेस्ट मैंने निकाला है. दिस आई एम गोना यूज इन माई करी. वेरी लिटिल, ज़्यादा करेंगे तो वो उसको कड़वा कर देगा. चलिए करी डाल लेते हैं. बॉल में से अच्छी तरीके से इसको निकाल लीजिए, ये देखिए. और इसको हम अच्छी तरीके से, जो ये पेस्ट होता है देखिए ऑलरेडी पका होता है, तो हमें थोड़ा सा पकाना है. जब तक हम इसको पका रहे हैं, व्हाट वी गोना डू इज, हम अपना कोकोनट मिल्क घोल लेते हैं. ये देखिए ये लिया मैंने कोकोनट मिल्क, और यहाँ डाला थोड़ा सा पानी. देखिए जनरली थाई करी जो बनती है काफ़ी थिक बनती है, पतली बनती है सॉरी. लेकिन हम जो बनाएंगे हमें थोड़ा सा थिक चाहिए, क्योंकि हमें मशरूम की इसके अंदर कोटिंग डालनी है. तो जो हम करी बनाएंगे ये थोड़ा सा थिक बैटर टाइप बनेगा, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी है जनरली और पतली होती है, बट क्योंकि हमें जो चाहिए वो मशरूम्स को कोट करने के लिए एक तरीके की सॉस चाहिए, तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है थिक रखेंगे. ये मेरा कोकोनट डिज़ोल्व हो गया है. चलिए अब डाल देते हैं करी के अंदर. तो ये बेसिक करी मैं बना रहा हूँ. आई एम श्योर इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. जिन लोगों को मालूम है, बहुत सारे शेफ्स हैं हमारे साथ. ये चला गया हमारा कोकोनट मिल्क यहाँ पे. थोड़ा सा पानी डाल के मैंने और इसको निकाल दिया है, और इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने देते हैं. यहाँ डालेंगे हमारे बाकी इंग्रेडिएंट सब थोड़ा थोड़ा करके. इसमें जाएगी हल्की सी चीनी, करीब 1 टेबलस्पून. हिला लीजिए यहाँ पे. ये देखिए थिक कंसिस्टेंसी की हमारी करी बन रही है. दिस इज़ व्हाट वी वांट. आप कोकोनट मिल्क का जनरली देखिए जो रेशियो होती है रेस्टोरेंट्स के अंदर, 1 किलो, अगर हमारे पास 80 ग्राम करी अगर हम लेते हैं तो हम 1 लीटर हमारा कोकोनट मिल्क होता है. तो आप अकॉर्डिंगली बना सकते हैं किस तरीके का. आपको करी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा लाइट रखना है, कोकोनट का ज़्यादा फ्लेवर चाहिए, तो आप कोकोनट भी इसके अंदर यहाँ डाल सकते हैं. तो टोटली डिपेंड्स कि आपकी क्या कंसिस्टेंसी है. हमारी मीडियम कंसिस्टेंसी है, देखिए देख सकते हैं आप. I think it's a great platform. Yes, absolutely, Nitin. It is a great initiative by ICF because you know, एक तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ अभी आप लोग घर पे बैठे हुए हैं. I think it's a great time to interact with all the chefs and so ये exactly नहीं है, जैसे मैंने बोला, we are not making exactly the Thai curry.
because we don't have the ingredients, but very similar to it. इसमें जाएगी हमारी हल्की सी सोया सॉस, दैट्स इट। तो ये लीजिए, और इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा यहाँ पे मेरा कोरिएंडर रूट। ये एक अच्छा फ्लेवर दे देगा हमारी करी को, और इसको हम यूज़ करेंगे हमारे मशरूम में भी। तो ये देखिए, ये हमारी हो गई है करी इस तरीके से रेडी। चलिए, और मैं इसको अब, और इसके अंदर हम लास्ट मिनट पे अब टच कर रहे हैं हमारा, आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम लास्ट मिनट पे डाल रहे हैं हल्का सा लेमन जूस, बिल्कुल हल्का सा। चलिए, अब इसको पकाएंगे नहीं, गैस मैंने बंद कर दी है, और इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। चलिए, ये देखिए, इस तरीके से एक बॉल में निकाल के आप अपनी करी को रख लीजिए, और इस करी का यूज़ आएगा हमारे पास जब हमारे मशरूम्स रेडी हो जाएंगे। तो ये लीजिए, ये मैंने निकाल लिया है। चलिए, इसको हम साइड कर देते हैं। मैं पैन ले आता हूँ वापस अपना। चलिए, तो ये हो गई करी हमारी साइड। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है हमारा मशरूम, जो कि हमारी टॉपिंग है हमारे राइस क्रैकर की। ओके, और इतने हम हमारा फ्राइंग भी ऑन कर लेते हैं। मैं जो साथ साथ हम दोनों चीज़ें करते हैं। मैं गैस ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि हम अपना तेल चढ़ा लेते हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखाऊंगा हमारे कैने पे कैसे बनेगा। चलिए, हमने तेल साइड बाय साइड ऑन करना शुरू कर दिया है। जब तक हमारा तेल गर्म होएगा, हम आ जाते हैं हमारे मशरूम की तरफ, और मैं अपना इधर भी दूसरा पैन भी ऑन कर लेता हूँ। Okay, if anybody has any questions, you can ask me. चलिए, हमारा पैन अभी गर्म हो रहा है। If anybody has any questions, you please ask me. जब तक पैन हो रहा है, I think I'm very excited, and again I would like to thank Chef Vinod also, especially who gave me this opportunity. So thank you so much, Chef, for this thing. तो चलिए, चलते हैं वापस कुकिंग की तरफ, और दिखाते हैं आपको कि ओके, हमारा पैन गरम हो रहा है। जब तक, चलिए, हमारा पैन गरम हो गया है। डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, पैन हो गया हल्का सा गरम। ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के हिसाब से ऑयल। सबसे पहले यहाँ पे हम सौते करेंगे हमारे मशरूम्स को। इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो हम डालेंगे बाद में। पहले मैं हमारे मशरूम्स को अच्छी तरीके से पकाना चाहता हूँ। इसका कैरमलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इन मशरूम्स का कैरमलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए आपका पैन होना आना चाहिए अच्छा हॉट। मैं इसमें अभी सॉल्ट नहीं डालूँगा, क्योंकि सॉल्ट से क्या होगा, इसमें पानी छूट जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं।
चलिए इसको हम अच्छी तरीके से सौते करेंगे। जब तक ये सौते हो रहा है, व्हाट वी विल डू इज हम हमारा जो ऑयल गर्म हो रहा है उसके हम रेडी कर लेते हैं हमारे। देखिए एक तो है ये साबूदाना क्रैकर, आप इसको भी एज ए बेस यूज़ कर सकते हैं। आप इस रेसिपी के अंदर कोई भी क्रैकर को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे जो टॉपिंग है उसको अच्छे तरीके से मतलब उसको होल्ड कर पाएगा। ये देखिए हाई फ्लेम पे धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये मैंने लिया है। इसमें दो फॉर्म आते हैं, एक इसका छोटा फॉर्म आता है और एक बड़ा आता है। तो अभी मेरे पास ये घर पे बड़ा वाला पड़ा हुआ था। जब आप इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी फूल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी करके, तेल जैसे गर्म होता है। और हमारी ये राइस पेपर शीट्स जो मैंने आपको अभी बताया था, ये हमारी राइस पेपर शीट्स हैं। इसको हमने क्या करना है, इसको हम हल्का सा भी पानी में डिप करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद इसको हम एक कप शेप में हम इसके राइस क्रैकर घर पर बनाएंगे। तो चलिए, ये हमारे मशरूम्स हो रहे हैं सौते। चलिए देखते हैं हमारा तेल अगर गर्म हो गया है। हाँ जी, हमारा तेल गर्म हो गया है और मैं देखता हूँ कि हमारा साबूदाना क्रैकर ये देखिए देखिए ऐसे बीच में मैंने इसको रखा है तो क्या हुआ, इसमें एक हल्की सी गहराई आ गई है। तो उससे क्या होगा, गहराई बनने से जो हमारी टॉपिंग है वो इसके अंदर आराम से आ जाएगी। ये देखिए ये फूल के ऊपर आ गया, तैर रहा है। ये देखिए अब ये तेल के अंदर तैर रहा है, इसका मतलब ये पक चुका है। आप चाहें तो इसको एक साइड और कर दीजिए। बट आप देख सकते हैं पीछे से कैसे इसमें ऊपर हल्का सा एक उभार आ गया। इसका मतलब हमने जब दूसरी साइड से पकाया तो इसको हमने हल्का सा उसके अंदर शेप दिया, जिसकी वजह से ये मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए, चलिए और जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हम राइस क्रैकर बनाने वाले हैं, राइस क्रैकर में हमने क्या करना है, थोड़ा सा मशरूम चलिए मशरूम भी हिलाते रहते हैं हम थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ओके लेट्स शो यू द क्रैकर। जैसे कि हमारा तेल गरम हो गया है, ये राइस क्रैकर है। इस राइस क्रैकर को मैं हल्का सा पानी से एक बार निकाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने पानी में डाला है और निकाल दिया है, दैट्स इट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। और इसके बाद ये जाएगा हमारे तेल में, ये ऐसे। और ये लैडर मैंने ऐसे इसमें बीच में लगा दी है, ये देख सकते हैं आप, बीच में मैंने लैडर रख दी है। और आप इस तरीके से इसके ऊपर से क्रैकर्स के ऊपर आप ये तेल डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लैडर से उसको एक शेप मिल जाएगी और जो हमें हमारे कैनेपे के लिए हमें जो शेप चाहिए, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए कितना बढ़िया आ गया है। इसको एक बार पलट देता हूँ, थोड़ा सा और पका लेते हैं तो ये एकदम बढ़िया पापड़ की तरह क्रिस्प होके निकल जाएगा। ये है हमारे वियतनामीज राइस पेपर। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये हो गया है। तो चलिए, आपने देख लिया कैसे ये हमने बनाया है। और ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन नाइस कलर इसमें हमने ले लिया। तो बहुत ही बढ़िया, जैसे आप इसको निकालेंगे और रखेंगे, ये देखिए कितनी बढ़िया इसके अंदर आप देख सकते हैं। अभी आपको क्लियर है एकदम, देखिए क्या बढ़िया इसके अंदर शेप आ गई है।
ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी थोड़े से 2-3 पहले करके रखे हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। तो मैंने 2-3 ऑलरेडी करके रख लिए थे, तो इसको हम साइड कर देते हैं। ये हमारे प्लेटिंग के लिए काम आएंगे। तो हमारा बेस रेडी हो चुका है, हमारा मशरूम बचा है, खाली हमारी करी रेडी है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी रेसिपी है जैसे मैंने आपको बोला। और ये देखिए, ये जो कैरमलाइजेशन है, ये मशरूम का जो कैरमलाइजेशन होना है, ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। आप बॉयल मशरूम से यूज़ करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम डालेंगे हल्का सा बटर। थोड़ा सा बटर ले रहा हूं और यहां डाल देंगे हम थोड़ा सा बटर। बटर क्या करेगा, इसके अंदर हेल्प करेगा हमें एक बढ़िया सी कैरमलाइजेशन डालने में और एक बढ़िया टेस्ट देने के लिए। देखिए बटर बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। तो जब तक अब इस मशरूम्स को हम बटर के साथ कुक कर रहे हैं साइड में, यहाँ मैं अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी अब इसको हम यहाँ पकने देते हैं। और मैं यहाँ डालना शुरू करता हूँ हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स जो थे। यहाँ डाल देंगे हम थोड़ा सा गार्लिक, जो साइड से पत्ता रहेगा हमारा साथ में। यहाँ डालूंगा मैं थोड़ा सा जिंजर। यहाँ जाएगा मशरूम्स के साथ हमारा अनियन। जो डाइस अनियन है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्रंच देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्रंच आए इसके अंदर, तो ये एक क्रंच का काम करेगा बहुत ही बढ़िया। और इसको हम फैला लेते हैं। अब यहाँ पे जो है आई जनरली लव कुकिंग विद बटर, क्योंकि एक बढ़िया टेस्ट उससे बन जाता है। तो जो हमारे अनियंस हैं, आप इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं, कंप्लीटली अवॉइडेबल है, बट आई लव कुकिंग विद बटर हेयर, स्पेशली इन दिस रेसिपी यहाँ पे, क्योंकि एक बटर से काफ़ी अच्छा टेस्ट बन जाएगा। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमारे अनियंस को, इसको, क्योंकि जो क्रंचनेस है उसकी, जो अनियंस की है, वो एक बहुत ही बढ़िया क्रंचनेस देगी। इसी के साथ जाएगा इसके अंदर यहाँ पे हमारा स्प्रिंग अनियन का वाइट कटा हुआ। अकॉर्डिंग टू योर स्पाइसेस यू कैन ऐड अ लिटिल ग्रीन चिली। आई एम यूजिंग 1 टीस्पून के आसपास। डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कोरिएंडर रूट। देखिए कोरिएंडर रूट एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। हम लोग इसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स अ ग्रेट इंग्रेडिएंट, जो एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है टेस्ट देने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये हो गया। देखिए हमारे मशरूम अगर सॉरी, अगर आप देख सकते हैं हमारे मशरूम में एक बढ़िया कैरमलाइजेशन आ चुकी है। अब हम इसको सबको एक साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बेसिक रेसिपी है। आप इसको अगर रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो आप इम्पोर्टेड मशरूम्स यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर पोर्चिनी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर शिताके डाल सकते हैं, आप इसके अंदर फ्रेश ऑयस्टर मशरूम्स डाल सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यही डिफरेंस है एक घर के अंदर और एक रेस्टोरेंट डिश के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, यही हमारी डिश को सेपरेट करता है हमारे रेस्टोरेंट से और हमारे घर से। लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये घर में बनाएंगे, ये टेस्टी ज़रूर है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें, आप ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा है कलर। चलिए ये हो गया रेडी। अब इसके अंदर जाएगा हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे सारा बेस रेडी है। रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मेरे पास ये थोड़ा सा
कोरिएंडर के, जो मैंने आपको फ्रेश कोरिएंडर दिखाया था वो मैंने थोड़ा सा मोटा करके इसके अंदर और डाल रहा हूँ। आई लाइक एडिंग हर्ब्स, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी लाइम और वो नहीं है। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दिस स्प्रिंग अनियन चॉप, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारी करी। ये जो हमने करी बनाई थी ये करी जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, ये हम करी डाल देते हैं। और इसको दे देते हैं एक बढ़िया सा सर्व। अगर आप देख सकते हैं ये हमारा जो मिक्सचर है ये बिल्कुल थिक है, हमने कोई थिकनिंग एजेंट यूज़ नहीं किया है। और इसमें करी के अंदर सिर्फ हम इसको यहाँ ऐसे पकने देंगे। अब थोड़ा सा मशरूम इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये इसमें हम पकने देंगे। देखिए यहाँ पे दो वर्जन्स हैं, मैं आपको एक और वर्जन दिखाऊंगा टू मेक इट मोर टेस्टी। अगर आप चीज़ी खाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर, जब हमारा कैनेपे बनेगा तो उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम अपना चीज़ के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी हल्का सा पामेज़ान या कोई भी प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो जो मिक्सचर है और क्रीमी हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी वाइट क्रीम मिला सकते हैं या वाइट सॉस डाल सकते हैं। बट ये क्योंकि थाई स्टाइल आज जो मैं बना रहा हूँ थाई स्टाइल है, इसके लिए हम यूज़ जो कर रहे हैं वो ये है। मेरे पास, जैसे मैंने बोला था, मेरे पास थोड़ी सी स्वीट चिली है। आई एम गोना यूज़ अ लिटिल स्पून ऑफ स्वीट चिली ऑल्सो है। मैंने जैसे पहले बोला, मैं गैस बंद कर रहा हूँ। ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, बट ये टेस्ट जो आता है इसके बाद, जो कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लेवर्स हैं, ये बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। स्वीट चिली सॉस जो है थाईलैंड की सॉस है, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ये देखिए क्या बढ़िया हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगा हल्का सा हमारा सॉल्ट। यहाँ पे हमारा जाएगा हल्का सा सॉल्ट। मैंने सबके आखिरी के लिए रखा है, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके अंदर ऑलरेडी है। तो इसको अच्छी तरीके से एक मिक्स दे देते हैं। आपके पास ब्रॉथ है, आप ब्रॉथ यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट यूजिंग, आई हैव जस्ट यूज वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि सोया सॉस से भी थोड़ी सी सॉल्टीनेस आएगी। और आई वॉन्ट द मशरूम्स का फ्लेवर, आई वॉन्ट टू हाईलाइट द मशरूम्स हेयर, बिकॉज थाई करी, कोकोनट, ऑल दोज फ्लेवर्स आर कमिंग। ये देखिए, चलिए ये हमारा रेडी हो गया है। ओके, अब कर लेते हैं हमारी प्लेटिंग। चलिए, प्लेटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, प्लेटिंग के लिए हम ले लेते हैं, मेरे पास ये नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे पास ये बनाना लीफ है। मैं इसको काट लेता हूँ, इसको हम सर्व करेंगे हमारे ये देखिए, ये हमने ऐसे निकाल लिया इससे। और मैं इसके स्क्वेयर्स काट लेता हूँ। इस तरीके से। और 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने 5 हमारे बनाना लीफ काट लिए हैं। चलिए, इसके ऊपर हम लगा लेते हैं बनाना लीव्स को ऐसे।
ये वॉश की हुई ऑलरेडी हैं, ये देख सकते हैं आपने ऐसे लगा लिया है। अब जाएगा इस पे हमारे ये क्रैकर्स, और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा जो टॉपिंग है हमारी रेडी, वो थोड़ी सी टॉपिंग डालेंगे हम यहाँ पे। ये लीजिए, यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ये स्टार्टर्स जो है ये आपका इमीडिएट खाना है, क्योंकि अगर आप राइस क्रैकर पे दे रहे हैं तो जो क्रैकर है थोड़ा सा सॉफ्ट है हमारा, तो ये टूट जाएगा अगर बहुत देर मॉइस्चर रहेगा, तो इसलिए ये इमीडिएट कंजम्पशन पे होना बहुत ज़रूरी है। ये गया हमारा दूसरी टॉपिंग। देखिए इस क्रैकर में मैं कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये जो साइड्स हैं क्यों नहीं काटी हैं, इसलिए कि आप इसको एज ए पापड़ की तरह खा सकते हैं, और जो बीच में हमारा मेन कैनेपे है उसको आप एक बाइट में खा सकते हैं। तो साइड वाला आपको एक बहुत ही बढ़िया कैप, जैसे आप पापड़ खाते हैं उस तरीके का टेक्सचर देगा। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट, और ना ही मैं चाहूँगा कि आप भी इसको वेस्ट करें। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारी ये कैनेपे के लिए जो हमारा मेन है ये बीच में आ गया। तो ये हमारा हो गया एक फर्स्ट बेस, आप देख सकते हैं ऐसे। और जिसमें मैंने बताया आपको कि एक हो गया हमारा, अब दूसरा एक जो इसमें आप कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे बोला जिनको चीज़ है, ये मेरा चीज़ है, और यहाँ पे आप हल्का सा पामेजान, तो पामेजान कोई भी आप चीज़, दैट्स इट। आप चाहे तो इस तरीके से चीज़ को भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन मैंने आपको दिखाया है। और चलिए ये हमारा हो गया है रेडी, कर लेते हैं इसकी, हमारी ये प्लेटिंग भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ इसको गार्निश कर देते हैं हमारे दिस कोरिएंडर से। ये चला गया यहाँ पे, और ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो देख सकते हैं कितनी सिंपल इजी रेसिपी है, और ये हमारा जो डिश है ये हमारी रेडी है। आप चाहे तो इसको क्रैकर की तरह खाएं, स्वीट चिली सॉस इसके ऊपर हल्की सी ड्रिजल कर सकते हैं, चाहे तो चीज़ डाल के इसको हल्का सा कर सकते हैं। ये हो गई एक प्लेटिंग। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसी की दूसरी प्लेटिंग, जो कि साबूदाना क्रैकर के ऊपर मैंने आपको जैसे बताया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने साइड कर दिया, दिखाता हूँ आपको दूसरी प्लेटिंग। चलिए देखिए साबूदाना क्रैकर, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो साबूदाना क्रैकर्स हैं, मैं आपको एक सिंगल प्लेटिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे खाली ये रखेंगे हम बनाना लीफ एक यहाँ पे, और ये इसके बेस पे आ गया जैसे। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें छोटा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो बिल्कुल छोटे होते हैं, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो 1 बाइट साइज़ होता है। आप चाहें तो इसको हाफ करके इसके ऊपर टॉपिंग डाल सकते हैं, बट अभी क्योंकि हम एक ही कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, सो आई एम जस्ट यूजिंग द सिंगल साबूदाना क्रैकर। और फिर सेम वे इसमें जाएगी हमारी टॉपिंग। ये देखिए, ओके, इसमें भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे तो आप चीज़ डाल दीजिए। इस वाले में हम थोड़ा सा चॉप स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं। ये देखिए प्लेट पे भी थोड़ा सा डाल देते हैं ऐसे। प्लस मेरे पास ये जो स्वीट चिली है, इसको साथ साबूदाने के साथ स्वीट चिली बहुत बढ़िया लगती है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज अ लिटिल ड्रिजल अराउंड द प्लेट ऑन दिस स्वीट चिली like this, which I'm going to use and eat along with it. So like this, and garnish of covender's leaf. तो आप देख सकते हैं कितनी आसान, कितनी इजी रेसिपी। ज़रूरी नहीं है कि ये अभी क्वारंटाइन टाइम में आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो, लेकिन आप स्टिल गो इनोवेटिव एंड आप उसके अंदर कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं। सो
आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी. और so I'll just show once again. This is sabudana cracker topped up with curry mushrooms, and this other one is rice cracker canapes topped with curry mushrooms. तो आई होप आप लोगों को नितिन, यू कैन, आई डोंट हैव नॉन वेजिटेरियन at home, so but you can replace the same recipe with the chicken. अगर आप लोगों के पास चिकन है, you can replace with this और any other ingredient. जैसे मैंने बोला, आप चाहे तो इसको पनीर से रिप्लेस कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको यू नो वॉट एवर इज फेवरेट, सोया चाप से रिप्लेस करना चाहते हैं, उससे रिप्लेस हो जाएगा. सो एनी अदर क्वेश्चंस, आई थिंक आई वुड बी हैप्पी टू शेयर. Chef Vinod, I can't resist. I can't tell you how I'm just waiting for this because this is one of my recipes I used to make in my restaurants and it is a hit dish. Only thing is that यहाँ पे जो आज हमने version दिखाया है, it's a home style version. But of course, when we make it in our restaurants, we add little bit of more ingredients here. But I can tell you, even this recipe अगर आप घर में बना रहे हैं, ये basic recipe with this basic ingredients, it is going to be very very tasty. Hi chef MS Shergill, Gaurav Dalji, thank you so much for sharing your knowledge. Thank you Gaurav Dalji for effort. It's our pleasure. At home we are just doing this. Nitin, you can add any seafood, chicken, as I said, anything. It's totally depend, but just make sure जो ratio है curry का with your chicken or seafood, especially seafood के अंदर you don't have to cook too long क्योंकि chances that meats get hard. So be very careful in this. Okay. Kandla ji, how are you? Chef, please tell croissants or Danish pastry recipe. I'm sure Chef Vinod can help in that. I'm not a pastry chef, but if you want, I can try to get from someone. Because at home making croissant is a very very difficult task, I believe, because you need a certain kind of temperature for this. So I think it's a little challenge for the people to make croissants at home. But yes, I will try to make anything which is possible, or any recipe which, like you said, I will try to give. So I hope आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी. And yeah, I think ICF का ये जो platform है, you will see a lot of chefs from different cuisines and different caliber from the art of cooking, so that आप breads भी सीखिए, आपको baking भी सिखाएंगे आपको. So I think they're gonna do a lot of sessions on this where professional chefs will come and teach you all the different techniques and different basic concepts of cooking, so that you can do it. Gaurav ji, मैं आपको बता दूं, making croissant is not easy. You need a certain kind of temperature to control it, and then you need a good layering of it. So that's very important, right? So I'm sure, but you will get it. So thank you so much everyone for joining me on this ICF platform, and I would like to thank ICF forum for this, to give me an opportunity also. So I think it's time to say goodbye, and I hope आप ये रेसिपी बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे. Once again, I would like to say Happy Mother's Day to all the lovely people around, to all the mothers, to all my dear chefs. I think it's a great day, and I'm sure you all are lovely chefs who are there, and the people who are cooking beautiful dishes for their moms today. Do share them on their social media platforms. आप लोग मेरी if you want to share or follow me on my social media, you can follow me on my Facebook as Chef Vaibhav Bhargav, on my Instagram as Chef Vepsi, and on Twitter as Chef Vepsi80. So you can follow my
You can follow my recipes there. Thank you everyone. Have a great day.